मैडम? हर्षुल। हुकुम हर्षुल। हर्षुल, चलो गुड लक, शुरू। Phylum Porifera. Sycon sky. Fa Spongilla freshwater sponge. Euspongia bath sponge. Phylum Coelenterata. Facilia Portuguese manner. For Adamsia C. Anemone. Pennatula C. Pen Gorgonia C. Fan Meandrina brain coral. Porelia jellyfish. Obelia poem. Phylum Ctenophora. Pleurobrachia. Tinoplana. Phylum Platyhelminthes. Tinea tape. Fasciola liver. Fluke planaria regeneration. Phylum Escalmenthes. Ascarias round. Ucheria filaria. Uncyclostoma hookworm. Phylum Annelida. Nereis dioecious peritima earth. Hirudinaria blood-sucking leech. Phylum Arthropoda. Economically important insect. Apis honey. Base bombax silk. Laxifer lac insect. Vectors. Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, Limulus kingcraft, Phylum mollusca, Phyla apple, snail, pink-tailed apple, hostel, sepia, cuttlefish, loligo, square, octopus, devilfish, Aplysia sea, hare, dentalum, turk shell, Chitopleura chiton, Phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber, Ophiura brittle star, Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Stachyglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Ascadia, Salpa, Doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma. Branchiostoma, Amphioxus or lancelet, Subphylum Vertebrata, class Cyclostoma, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, Maxine hagfish, class Chondrichthyes, Scoliodon dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray, Perpedo electric ray, class Ostrichthyes, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Lobio, rohu, catla, curtla, Clarius magur, aquarium fishes, Bitta fatty fish, Pterophyllum angelfish, class Amphibia, Bufotod, rana frog, hyla tree frog, Salamandra, salamander, Ichthylus limbless amphibia, class Reptilia, Chelon turtle, Testido tortoise, Chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, Hemidactylus walrus, poisonous snakes, Naja cobra, Bungarus crate, Vipera viper, class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Sitacula parrot, Strutio ostrich, Pavo peacock, Aptenodyes penguin, Nephron vulture, class Mammalia. Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balanoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. थैंक यू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया विजया बेटा, बहुत ही बढ़िया, विजया गायकवाड। ओके, थँक यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मस्त, छान, खूपच छान, खूपच छान बोललात तुम्ही मला। ओके, सो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, समझे? दिसते का हिकायत? ओके, कालच आल्यात, आलं लक्षात? सो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट टाइम ज्या ज्या वेळेस होतील
त्यासाठी आहेत. नुसते खोके नाहीत. हे बघाय तर म्हणतात सर काय नुसते खोके हे ओपन करतो. ओके, नुसतं घड्याळ नाही, सन्मान आहे हा. नुसती रिस्ट वॉच नाही तर सन्मान आहे हा. आदित्यला विचारा, त्याच्या आज बी हातावर मला त्या दिवशी भेटायला आला होता, त्याच्या हातामध्ये ही घड्याळ होती. फास्ट ट्रॅक, सन्मान आहे, नुसती घड्याळ नाही ही, लक्षात ठेवा. चलो, क्या बात है. सगळ्यात जास्त प्रत्येक, बहुत बढिया बहुत बढिया. काय काय प्रॉब्लेम आहे बेटा, गुड लक फॉर दॅट. आता गिफ्ट कॅन्सल केलं, पोरं चिटिंग करले, चीटरला कसं देणार गिफ्ट? समोरासमोर ज्यावेळेस एक्झाम होतील त्यावेळेस देऊ आपण, ठीक आहे. चलो चलो चला, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं. नाउ वी आर डीलिंग विद टॉपिक एके, और एके में अभी विजया गायकवाड़ ने पूरे एग्जाम्पल एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने रिवाइज किए हैं. और हम बात करें दोस्तों फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में बात करते हैं. दैट इज फोर्थ फाइलम, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस. फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, इनका ऐसा नाम क्यों है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ प्लैटीहेल्मिन्थस? प्लैटीहेल्मिन्थस, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस. या फिर उनका दूसरा नाम है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म. फ्लैट मीन्स उनकी बॉडी फ्लैट होती है. मेजरिंग टेप कैसा होता है? मेजरिंग टेप कैसा फ्लैट है? मेजरिंग टेप शायद है यहाँ पे, मेजरिंग टेप जैसी बॉडी होती है उनकी, इसलिए उनका नाम है टेप वर्म, टीनिया टेप वर्म. मेजरिंग टेप जैसी बॉडी असते म्हणून टीनिया टेप वर्म. सो प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट. So they are named so as their body is dorsoventrally flattened. Named so, क्या बात, platyhelminths named so as their body is dorsoventrally flattened, as their body is dorsoventrally फ्लैटेंड. सर ये डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या है, पहले ये समझाओ, फिर बाद में बोलो कि बॉडी फ्लैट है. सपोज मेरा ये हाथ है, सपोज मेरा हाथ है. नाउ व्हाट इज द डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल? मैं भी एक एनिमल हूं, आप भी एक एनिमल है. नाउ वी आर नाउ बायपेडल, पर मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे दोस्तों? क्वाड्रापेडल होंगे या फिर रेप्टाइल जैसे होते हैं, सरपंट. सो क्वाड्रापेडल है. सपोज मान लो कोई भी काऊ या बफेलो है, मुझे कंसिडर मत करो बफेलो वगैरह, पर मैं बोल रहा हूं. तो ये जो मेरा ये पोर्शन है दैट इज फेसिंग टू सन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड दोस्तों डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल. और जो मेरे बॉडी का जो पार्ट फेसिंग टू अर्थ है उसे कहेंगे वेंट्रल. फेसिंग टू अर्थ उसे कहेंगे वेंट्रल. तो ये क्या हुआ? ओके, ये क्या होगा दोस्तों? ये हो गया डॉर्सल और ये हो गया वेंट्रल. नाउ तो ये हम डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड है क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूं. कोई भी ह्यूमन बीइंग डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड नहीं है. ये जो कीबोर्ड है ओके लॉजिटेक का, ये मगर डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट है. ये उसका डॉर्सल सरफेस है ओके, और ये उसका वेंट्रल सरफेस है. ये उसका वेंट्रल सरफेस है. डॉर्सल सरफेस फेसिंग टू सन और वेंट्रल सरफेस फेसिंग टू दैट इज अर्थ. दूसरी बात, अगर वेंट्रल का मतलब होता है बेली, एब्डमन. वेंट्रल का मतलब क्या है? बेली और एब्डमन. सो एब्डमन की तरफ जो पार्ट होगा बॉडी का, जो सरफेस, जिस सरफेस पे एब्डमन है उसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और उसके अपोजिट वाला डॉर्सल. अभी वेंट्रल डॉर्सल क्लियर? वेंट्रल डॉर्सल क्लियर? ओके, वेंट्रल डॉर्सल क्लियर. सो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है. दीज आर डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ फ्लैटवर्म और प्लैटीहेल्मिन्थस. फिर से शुरू कर देते हैं फ्लैटवर्म और प्लैटीहेल्मिन्थस दोस्तों. फिर नंबर 1, व्हाट इज द हैबिटेट? हैबिटेट कहां पे, रहते कहां पे है? हैबिटेट बोलो. हैबिटेट क्या होगी? हैबिटेट और हैबिट. ओके, हैबिटेट और हैबिट हे महत्वाचं. हैबिटेट मध्ये जर बघत असाल, इनमें
तो दोस्तों ये एक्वेटिक भी है, जैसे प्लानेरिया का देखो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट है। अभी तक सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट वाले थे, इनमें एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। एक्वेटिक मींस इन वाटर, टेरेस्ट्रियल मींस ऑन लैंड। नाउ दोस्तों ये जो है पॉइंट नंबर 3, दैट इज अ हैबिट। हैबिटेट मींस नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हैबिट मींस उसका नेचर कैसा है। तो हैबिट में देखा जाए तो दोस्तों ये फ्री लिविंग एज वेल एज एंडो पैरासाइट भी होते हैं, दोनों है। फ्री लिविंग मींस जनरली प्लाटेल मीन्स पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग भी है दोस्तों, पर पैरासाइट भी है। और पैरासाइट में भी कौन से, एंडो पैरासाइट होते हैं। कौन से पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, लक्षात एंडो पैरासाइट मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट। नाउ व्हाट इज मीन बाय पैरासाइट सर, हमने सुना है द मीनिंग ऑफ टर्म पैरासाइट का मीनिंग क्या है, मत आपको बताऊं। पैरासाइट का मतलब होता है ईटिंग्स ऑन द अदर्स टेबल, दूसरे के टेबल के ऊपर खाना खाना, इसका मतलब ये है। तो ये पैरासाइट कैसे, दूसरे के थाली में का खाना खाना, दैट इज पैरासाइट। अगर आप एमबीबीएस में गए और पास आउट हो गए, तो सपोज मान लो आप मुंबई में हो, केईएम में, ओके, तो आपको केईएम कहाँ पे, लोअर परेल मीन्स मुंबई का मेन एरिया है ना। वहीं से थोड़ा इधर उधर गए तो दादर वगैरह सब एरिया वहीं पे, लोअर परेल मेन एरिया मुंबई का, परेल, परळ, लालबाग परळ ऐकलं असेल, परळ म्हणजे परेल। केईएम में हो आप, पास आउट हो गए, इंटर्नशिप हो गई, तो आपको ना रूम छोड़नी पड़ती है। पर आपको तो पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस एमडी करना है, तो एमएस करना है, तो उसके क्लासेस लगाए वहां पे। तो आप तो उतना बड़े हो नहीं कि आप मुंबई में जो वहां पर का जो रेंट है 50,000 रुपये होगा, 40,000 50,000 रुपये 1 BHK का रेंट, या फिर उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो आप तो पे नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, पैरासाइट, रूम पैरासाइट मीन्स आपका जो जूनियर है, जो दोस्त है, अभी भी कॉलेज में है, उसको बोलते भाई 6 महीने या फिर 1 साल मुझे रहने दे तेरे रूम के ऊपर, खाने का मैं खुद देख लूंगा। तो आप पैरासाइट हो गए आपके जूनियर या फिर आपके दोस्त के ऊपर। तो पैरासाइट मतलब ईटिंग ऑन अदर्स टेबल। अगर ये पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते तो एंडो पैरासाइट, बॉडी के ऊपर रहते तो एक्टो पैरासाइट। ये बहुत इजी है कहने का मतलब है। तो ये दोनों भी होते हैं, नो डाउट। ये प्लैटिहेल्मिन्थस आर बोथ एंडो एंड एक्टो पैरासाइट, बट मोस्टली एमसीक्यू ये आता है, मोस्टली दे आर एंडो पैरासाइट। मोस्टली वो कौन से दोस्तों, एंडो पैरासाइट। और उसके पैरासाइट के क्या क्या उसके फीचर्स है, बात करेंगे कि पैरासाइट के फीचर दोस्तों, दे हैव डेवलप्ड हुक्स एंड सकर। हुक्स फॉर द अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी को अटैचमेंट करने के लिए उनके पास होते हैं हुक्स, और सकर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, याद रखो, फ्रॉम द होस्ट। तो होस्ट पैरासाइट मतलब, पैरासाइट मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। पैरासाइट का डेफिनेशन बोलूं मैं, पैरासाइट इट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट, उसे कहते हैं पैरासाइट। और होस्ट मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को सहारा दे रहा है। सो जो एंडो पैरासाइट दोस्तों, व्हाट आर द फीचर्स डेवलप्ड इन पैरासाइट, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से है, मैं यही कवर करूंगा। फीचर्स, ओके, specific to parasitism, specific to parasitism, पैरासाइटिज्म। ये पैरासाइटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं दोस्तों। आपके पास 12 का बुक है क्या, आपके पास 12 का बुक है। हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट, हेट्रोट्रॉपिक ही होता है बच्चों, पैरासाइट इज हेट्रोट्रॉपिक। 12 का बुक है क्या आपके पास, ओके। मैंने बोला था कि 12 का बुक चाहिए करके, ओके। तो पेज नंबर अगर है तो 235 निकालो, पेज नंबर है तो 235 निकालो। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये सिलेबस में है। दिख रहा है पैरासाइटिज्म, दिख रहा है क्या नहीं, दिख रहा है क्या नहीं। ये कहीं तो भी यहाँ पे प्रिडेशन होगा, ये कॉम्पिटिशन है। मैं कॉम्पिटिशन करना यहाँ पे लेता हूँ, कहाँ गया पैरासाइटिज्म, दिख रहा है, यस और नो। इतना छोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सिलेबस में पैरासाइटिज्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होता है दोस्तों, ओके, याद रखो।
सो दोस्तों फीचर्स और स्पेशल एडाप्टेशन होते हैं, स्पेशल एडाप्टेशन शब्द यूज करता हूं, ओके, स्पेशल एडाप्टेशन डेवलप करते हैं, स्पेशल एडाप्टेशन इन पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशल एडाप्टेशन इन पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या एडाप्टेशन है, तो पहले तो मैं सिलेबस में जो दिए है वो बोलूंगा। दैट इज नंबर 1 दोस्तों, दैट इज हुक्स। हुक्स जसा असत ना, हुक्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, होस्ट के साथ अटैच होने के लिए उनके बॉडी के ऊपर होते हैं हुक्स। दूसरा मुद्दा होता है दोस्तों दैट इज सकर। नाउ सकर क्या करते हैं, सकर काम करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सक करना, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, कहां से, फ्रॉम बना बनाए न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम दी होस्ट बॉडी, होस्ट के बॉडी, होस्ट ने खुद ने ये न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट किए हैं और वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आयता बिळत नागोबा म्हणजे पैरासाइटिज्म, ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स दोस्तों ये सकर के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। आपने पिक्चर देखे होंगे हॉलीवुड में, कोई तो भी ऐसे वियर्ड एनिमल आते हैं और फिर ऐसा ओके अटैच हो जाते हैं फेस के ऊपर, ऐसा दैट इज कॉल्ड हुक सकर्स। नंबर 3 क्या होता है ना, ये जो एंडोपैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर है या फिर बॉडी के ऊपर होते हैं, तो जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे कि आईज या फिर मान लो ऑर्गन फॉर विजन, हेयरिंग, टच, ये कुछ भी ये लॉस हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि मेरे अंदर है पैरासाइट, ओके, तो मुझ में समझ ऐसा खेल है ये, अगर मेरे अंदर है ये पैरासाइट तो उसको जरूरत नहीं ना, बाहर का टेम्परेचर कैसा है या फिर बाहर डेंजर है या कुछ भी नहीं, सो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ, बहुत एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ unnecessary, loss of unnecessary sense organ, loss of unnecessary sense organ, जो उसको नेसेसरी नहीं, भले बाकी के एनिमल को नेसेसरी होंगे पर उनको जरूरत नहीं तो ये लॉस हो जाएंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होगी या नहीं, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होगी क्या, आपको लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होगी? ओके ओके नहीं, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई जरूरत नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्यों लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? क्योंकि ये ना क्या कर रहे, ब्लड में पैरासाइट क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है ऑलरेडी उसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं, सो देयर इज अ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन देम। और दोस्तों नंबर 1 इनमें सिर्फ एक ही है, एक ही इनके लाइफ का मकसद एक है, जियो और जीने दो और रिप्रोड्यूस करते रहो, खुद के स्पीसीज का नंबर बढ़ाते रहो। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनमें, याद रखो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम काय दोस्तों, हाय रिप्रोडक्शन कॅपॅसिटी, सगळं गेलंय पण हाय रिप्रोडक्शन कॅपॅसिटी, दोन गोष्टी, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि उन्हें जिंदा रहना है, इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और हर स्पीसीज चाहती है कि वो कंटिन्यू करते रहे लाइफ के ऊपर अपनी जर्नी। तो कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, पर इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बाकी सब कम है। ओके, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट हुक्स और सकर डेवलप हुए। इज दैट क्लियर? समझे आप? समझे? सो हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन है, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस आर द स्पेशल एडाप्टेशन पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट, प्लैटिहेल्मिन्थस सर पैरासाइट, आगे वाले जो एस्केहेल्मिन्थस दे आर आल्सो पैरासाइट, और ये दे आल्सो कॉजेस डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग। मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। नाउ फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस के बारे में बात की, हैबिट, हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिट, और वो हैबिट में मैंने कहा कि वो मोस्टली एंडोपैरासाइट है, सम ऑफ देम आर आल्सो एक्टोपैरासाइट बट मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट। ये क्लियर है? ये सभी फीचर समझ में आए? ऐसा क्यों है? हुक्स क्यों है? फॉर अटैचमेंट, पैरासाइट है तो अटैचमेंट हो जाएंगे। सकर क्यों है? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी। फिर दोस्तों अननेसेसरी सेंस ऑर्गन जो थे वो लॉस हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम की ज्यादा जरूरत नहीं, तो एब्सेंट ही होती है, ऑलमोस्ट जरूरत नहीं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो पैरासाइट है उनको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी लेकिन बहुत ही हाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं किसकी? प्लैटिहेल्मिन्थस की। तो आप मुझे आंसर करो, आप मुझे आंसर करो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज LOO? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप करो।
मैं देख रहा हूँ, टाइप करो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, सॉरी cellular level of organization is present in porifera, tissue level of organization is present in coelenterata and ctenophora, organ level of organization is present in platyhelminthes, और ये platyhelminthes है, और organ system level of organization is present in Aschelminthes। सो दोस्तों ये है organ level of organization, organ level of organization। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का पॉइंट ये है, सिमेट्री में दैट इज, सिमेट्री का पॉइंट ये है, तो आप मुझे बोलो कौन सी सिमेट्री होगी, बायलैटरल, रेडियल या फिर असिमेट्रिकल। क्या सिमेट्री होगी दोस्तों, बायलैटरल, क्योंकि सिमेट्री का क्या निमोनिक्स है, मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर असिमेट्रिकल। नंबर 2, सम स्पंजेस or some student are ready for CET, means some sponges and CET means coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora are radially symmetrical, बाकी के बचे हुए bilaterally symmetrical। तो बॉडी सिमेट्री कैसे हो गए दोस्तों, बॉडी सिमेट्री इज bilateral, bilateral। now what is meant by bilateral body symmetry, जैसे हमारी होती है, the body can be divided into right and left half by passing only one plane through the center, bilaterally symmetrical body। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जर्म लेयर सांगा इन एम्ब्रियो, नंबर ऑफ जर्म लेयर इन एम्ब्रियो। तो क्या लिखूं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, चेंज हो गया, दीज आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दीज आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 3 लेयर होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एमसीक्यू फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, याद रखो। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन अपीयर इन, ये सब याद रखना, फर्स्ट टाइम किस में अपीयर हुआ है। तो ये है दोस्तों जर्म लेयर, सॉरी प्लैटीहेल्मिन्थस की बात करें, प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर से सीलोम बोला, सीलोम का है, लेकिन सीलोम क्या है, सीलोमेट और सीलोमेट का है, कितनी स्मार्ट झाला तुम्हें, सीलोम का है, सीलोम बोलो क्या है, बहुत ही बढ़िया, सब मैं पढ़ रहा हूँ, कौस्तुभ, माधव, अभिषेक, तेजस्विनी, मोहित, श्रीकांत, अभिजीत, वैभवी, असिलोमेट है, ये क्या है, असिलोमेट है, असिलोमेट मतलब सीलोम इज एब्सेंट। क्या निमोनिक्स है, एस्केलेमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट, अबो एस्केलेमिंथस असिलोमेट, बिलो एस्केलेमिंथस सिलोमेट। असिलोमेट मींस बॉडी कैविटी और द सीलोम इज एब्सेंट इन देम। सेगमेंटेशन बद्दल बोलूया, लेट डिस्कस अबाउट द सेगमेंटेशन, लेट डिस्कस अबाउट दोस्तों सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कैसा है बोलो, सेगमेंटेशन का क्या निमोनिक्स है, व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर सेगमेंटेशन सांगा, ए निमोनिक्स पाहिजे, एएसी, एनए, लिडा, अर्थ, पोडा, कॉर्डेट आर सेगमेंटेड, बाकी सब नॉन सेगमेंटेड या फिर अनसेगमेंटेड, दोनों में से कोई भी एक शब्द आया तो उसे हमें चूज करना है। सेगमेंटेड मींस नॉन सेगमेंटेड है, कैसा है, नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन है का नो। फिर दोस्तों नोटोकॉर्ड आएगा, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली कॉर्डेटा, तो नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होगा। नर्व कॉर्ड कैसा है, नर्व कॉर्ड कैसा होगा, नर्व कॉर्ड होता है, तो नर्व कॉर्ड कैसा दोस्तों, नर्व कॉर्ड डीवीएस, डीवीएस मैंने कहा ना, डीवीएस मींस कैसा, डॉर्सल वेंट्रल होता है, पर कैसा है, डीवीएस मींस डॉर्सल, सीएनएस कैसा है, डॉर्सल वेंट्रल एंड सॉलिड, dorsal ventral and solid, this is a common feature among all non-chordate except porifera, क्योंकि उनमें nerve cord ही absent है, कहता है porifera छोड़ लेता है, ठीक है। dorsal ventral and solid कहा है, dorsal ventral and solid, बार चला, ठीक है। पुढे आता पुन्हा त्याच्यानंतर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी बद्दल बोला झालं तर दे आर दोस्तों मोनोसियस और बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल म्हणजे काय रे, बायसेक्सुअल म्हणजे मोनोसियस, बायसेक्सुअल म्हणजे मोनोसियस म्हणजे काय, म्हणजेच हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब है, अब मैंने पहले लेक्चर में इसको बताया है, means both male and female sex organ present on the same individual, number 1.
नंबर 2, स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, और दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट। इज दैट क्लियर? हर्माफ्रोडाइट। नाउ रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन कैसा दोस्तों? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? बोलो, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। दैट इज असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखो, ठीक है। तो दोन गोष्टी आहेत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, दोन गोष्टी, दैट इज रीजनरेशन नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन किसमें दोस्तों? रीजनरेशन इन प्लानेरिया। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन प्लानेरिया। और दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो देयर and it is by fusion of gamete. Sexual reproduction is also there and this is by sexual reproduction by fusion of gamete. मेरे दोस्तों by fusion of gamete, by fusion of gamete, by fusion of gametes. Sexual reproduction by fusion of gamete. Clear है? Level of ornation, symmetry, germ layer, coelom, segmentation, notochord, nerve cord, sexuality, reproduction. फिर आता है point that is about the point number fertilization. आपको क्या लगता है कैसा होगा fertilization? Now what is the mnemonics for external fertilization? External fertilization का mnemonics क्या है? Hot T means hemichordata, ostic, thighs, T nervefora, echodermata, amphibians. External fertilization. बाकी में internal fertilization. तो दोस्तों याद रखो इनमें जो fertilization होता है वो कैसा है? Internal fertilization means occur inside the body. नाउ डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट। यही 15-16 पॉइंट होते हैं और इन्हीं के ऊपर एमसीक्यू और कुछ यूनिक फीचर। तो डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट की बात करें तो ORBM मींस ऑस्टिक, थाइस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और अर्थवॉर्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा, याद रखो। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। कुछ यूनिक फीचर है ना सर? बोलो ना क्या है? यूनिक फीचर इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दोस्तों, मैं समझाता हूं। दैट इज इनका जो यूनिक फीचर होता है प्लैटीहेलमिन्थस, जो यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर, व्हेन यूनिक तो नहीं बोलेंगे, बाकी इसमें भी है पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिक फीचर। दैट इज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दोस्तों, इसमें दे हैव दैट इज फ्लेम सेल्स होते हैं। यूनिक फीचर क्या है उसे कहते दोस्तों? फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, या फिर इसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ये यूनिक फीचर नहीं है बट मान लो कि बाकी के लोगों में होता है पर इसमें भी एनसीईआरटी में इसमें बहुत कॉमन है। दैट इज फ्लेम सेल। लक्षात ठेवा काय फ्लेम सेल, त्याला म्हणायचं प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया कशा असतील ह्या फ्लेम सेल? तुम्हाला दाखवतो पण जरा लक्ष द्या। और इनका काम क्या है फ्लेम सेल का दोस्तों? दे हेल्प इन एमसीक्यू, हेल्प इन दोस्तों, दैट इज हेल्प इन, सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्या सिलिएटेड सेल आहेत, लक्षात ठेवा। वो सिलिएटेड सेल्स होते फ्लेम सेल्स दोस्तों, सिलिएटेड सेल्स है फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया म्हणतात। और उनका काम होता है दे हेल्प इन ऑस्मो एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। हेल्प इन excretion means removal of undigested or unwanted nitrogenous waste. Excretion and osmoregulation. Osmoregulation means regulation of body fluid, maintaining the acid base balance of the body fluid, maintaining the concentration of ions and water in the body fluid, उसे कहते हैं osmoregulation. Osmoregulation, अगर सपोज सोडियम आयन ज्यादा हो गए तो उसको कम करना, अगर पोटेशियम आयन कम है तो उसको बढ़ाना, तो इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करना, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। एंड एक्सक्रीशन ऑफ अनवास्ट, एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सिलिएटेड होते हैं और ये फ्लेम जैसे होते हैं। ये फ्लेम सेल है ना, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये फ्लेम सेल दिखते कैसे हैं? सपोज मान लो दोस्तों कुछ इस तरीके से होते हैं ये फ्लेम सेल। चलो देखते हैं। मान लो ये है फ्लेम, ये सीलिया होते हैं ऐसे अंदर से, ये सीलिया होते हैं
अंदर से। और ये सीलिया है ना, मान लो ये जो सीलिया है ना, ये सीलिया की मूवमेंट होती रहती है, ये जो सीलिया है ना इनकी मूवमेंट होती रहती है। और ये जैसे सपोज मान लो इनकी मूवमेंट होती रहती है तो इट विल अपीयर लाइक अ फ्लेम। इनकी जो मूवमेंट है दोस्तों ये होती रहती है, तो दैट सीलियल मूवमेंट इज अपीयर लाइक अ फ्लेम, ज्योति सारखे दिसते थे, इसलिए उन्हें कहा गया है फ्लेम सेल। इसलिए उन्हें कहा गया है फ्लेम सेल, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। समझे आप? व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल? द सीलियरी मूवमेंट अपीयर लाइक अ फ्लेम, ज्योति सारखे दिसायला थे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये फ्लेम सेल है। सो दोस्तों ये है फ्लेम सेल एंड दे हेल्प इन क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो ये है फ्लेम सेल, याद रखो, दीज आर द फ्लेम सेल, फ्लेम सेल एक, और ये है दोस्तों उसके सीलिया। नाउ कैसे याद रखेंगे? व्हाट इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन फ्लेम सेल? F for flame cell, F for excretory organ in flatworm, flatworm म्हणजे platyhelminthes, F for flatworm, F for flame cell, याद रखो, F for flatworm, F for flatworm, F for flame cell, MCQ, MCQ, F for flatworm, F for flame cell. Okay, done. Is that okay? Clear है? Okay. वेदांश, वेदांश गलत पकड़े हो बेटा, फूड वैक्यूल्स का काम नहीं है एक्सक्रेशन। प्रोटिस्टा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वेदांश। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटिस्टा हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑस्मोलेशन, फूड वैक्यूल नाही। तेच म्हणलं होता, मला माहिती आहे, पण फूड वैक्यूल आलं, मला वाटलं फूड वैक्यूल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रॅक्टाइल। आर यू गेटिंग मी? समजे? अरे तुला आठवलं हीच खूप मोठी गोष्ट आहे, मला खूप बढ़िया वाटलं। यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द टू टॉपिक्स, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। फूड वैक्यूल हेल्प इन डायजेशन, क्या बात है यार प्रतीक दांडगे। प्रतीक म्हणतो मी सर्वात जास्त फास्ट ट्रॅक वॉच घेऊन जाईल, मी तुला सर्वात जास्त फास्ट ट्रॅक वॉच देईल, तो टॉपर येत रहा। ये क्लियर हो गया, खत्म। प्लैटिहेल्मिंथस एग्जाम्पल क्या है? ओके, टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, मैंने लिख दिया है। प्लॅनेरिया भी है, प्लॅनेरिया, प्लॅनेरिया, डुगोसिया म्हणतात तिला, मी पुढे क्लासिफिकेशन देना। डुगोसिया मींस प्लैनेरिया, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। रीजनरेशन क्या होता है मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। ये हो गया दोस्तों प्लैटिहेल्मिंथस। नाउ टीनिया, टेपवर्म और फैसियोला, लिवर फ्लूक, ये टीनिया ना एंडो पैरासाइट है, इट कॉजेस डिसीज कॉल्ड टीनियासिस। और फैसियोला हेपेटिका, इट आल्सो कॉजेस डिसीज कॉल्ड दोस्तों हेपेटिक अब्सेस करते हैं। फैसियोला, लिवर फ्लूक, ओके, फैसियोला, लिवर फ्लूक, उसका नाम है फैसियोला, जीनस है, हेपेटिका उस स्पीसीज का नाम है फैसियोला हेपेटिका। तो ये डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, दे कॉजेस डिसीज। मैं ये दो हेलमिंथ है हमारे सिलेबस में, एक है प्लैटिहेल्मिंथस जो अभी पढ़ रहे, इसके बाद एस्केहेल्मिंथस, ये दो ही हेलमिंथ है, प्लैटिहेल्मिंथस, एस्केहेल्मिंथस मेन। और ये दोनों भी प्लैटिहेल्मिंथस एंड एस्केहेल्मिंथस दे कॉजेस डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग, दे कॉजेस डिसीजेस। तो ये होने के बाद मैं थोड़े से मेन एक डिसीज उसके 4 सिम्टम, एक डिसीज उसके 4 सिम्टम, एग्जैक्ट कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्योंकि आगे चल के सिलेबस में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे का जो फाइलम है उसकी तरफ, दैट इज फाइलम एस्केहेल्मिंथस। इज दैट ओके? आज 2 फाइलम करेंगे, फाइलम एस्केहेल्मिंथस। आगे बढ़ते हैं, फाइलम एस्केहेल्मिंथस, ये हो गया प्लैटिहेल्मिंथस। आप ही मुझे बताओ, मैं नहीं पढ़ने वाला अभी, फाइलम एस्केहेल्मिंथस मैं नहीं पढ़ाने वाला एक्चुअली। एस्केहेल्मिंथस, इसका दूसरा नाम कोई मुझे बता सकता है? इसका दूसरा नाम क्या है? एस्केहेल्मिंथस इज आल्सो कॉल्ड एज, 10th में था होगा, नेमैटहेल्मिंथस। वेदांश क्या बात है, इनका दूसरा नाम है नेमैटहेल्मिंथस, नेमैटहेल्मिंथस। बच्चों हेल्मिंथस का मतलब होता है वर्म, ओके, हेल्मिंथ मींस वर्म। एस्केहेल्मिंथस का दूसरा नाम होता है नेमैटहेल्मिंथस, और इसका पॉपुलर एक नाम है राउंड वर्म कहते हैं उसे, राउंड वर्म। खरे तो राउंड वर्म एस्केरिस का नाम है, पर इन्हें भी राउंड वर्म कहा जाता है, एस्केहेल्मिंथस को। नाउ ओके, व्हाई दे आर नेम्ड एज एस्केहेल्मिंथस, कोई मुझे बता सकता है उन्हें एस्केहेल्मिंथस क्यों कहा गया है? व्हाई दे आर नेम्ड एज एस्केहेल्मिंथस?
ओके रेंज नाही उन्मेष कस काय रे बेटा तुझ्याकडे रेंज नाहीये अरे यार रेंज नाही आहे मी टाकतो लेक्चर लगेच बेटा ठीक है एस्केलमिंथस राउंड वर्म तो दोस्तों एस्केलमिंथस राउंड वर्म नेमेट हेलमिंथस एस्केलमिंथस व्हाई दे आर नेम्ड सो दे आर नेम्ड सो ओके यही से शुरू करेंगे दे आर नेम्ड सो यही से शुरू करेंगे नेम्ड सो व्हाई एज ऑन ट्रांसफर सेक्शन अगर ऐसा कट कर दिया ट्रांसवर्सली ये तो वर्टिकल कट हो गया अगर ऐसा ट्रांसवर्स कट कर दिया ऑन ट्रांसफर सेक्शन देयर क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर इसलिए उन्हें कहा जाता है राउंड वर्म या फिर एस्केलमिंथस ओके ऑन ट्रांसफर सेक्शन on transverse section on transverse section लक्षात ठेवा there on transverse cross section their body is दोस्तों सर्कुलर होती है इसीलिए नाम है राउंड वर्म सर्कल में राउंड होता है ना सर्कुलर इसीलिए नाम क्या है राउंड वर्म देयर बॉडी इज सर्कुलर इसीलिए नाम है राउंड वर्म नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 दैट इज हैबिटेट तेज मुद्दे रहते कहां पे हैबिटेट ओके हैबिटेट दोस्तों एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल क्या हैबिटेट है हैबिटेट दोनों है एक्वेटिक एज वेल एज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों है aquatic means water terrestrial means land now यहाँ पे बहुत ही important है that is habit means either they are free living और दोस्तों parasite habit क्या है आपको क्या लगता है आपको किसका नाम है जो फ्री लिविंग होगा फ्री लिविंग दोनों है नो डाउट फ्री लिविंग एंड पैरासाइट फ्री लिविंग पता है आपको फ्री लिविंग ऐसा कोई एस्केलमिंथस एक ही है दुनिया में इसलिए पूछ रहा हूँ और फिर ये एंडो पैरासाइट होते हैं एंडो पैरासाइट लिखता हूं इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल एमसीक्यू बोथ प्लांट पहले लिखता हूं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल का तो पता ही हमें पर प्लांट्स में भी ये पैरासाइट होते हैं ये एमसीक्यू आता है दे आर पैरासाइट एंडो पैरासाइट इन प्लांट ओनली एनिमल ओनली बोथ प्लांट एंड एनिमल आंसर इज दे आर पैरासाइट एंडो पैरासाइट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल ओके एमसीक्यू ये फेमस है आपको पता है कोई फ्री लिविंग एस्केलमिंथस एक ही है दुनिया में पता है एस्केरिस नहीं क्या बात है यार किसने बोला ये किसने बोला अमेश लकाश वाओ 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 क्या बात है यार एक ही है उसका नाम है दोस्तों रैप्डाइटिस ओके उसका नाम है रैप्डाइटिस सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स नाम असतं खरं नाव सांगू फ्री लिविंग तो दोस्तों इसका एग्जांपल है दैट इज सिनोरैप्डाइटिस ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स क्या नाम है ना उसका सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स विशाल सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स ये नॉन फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड है इसके लिए एक लाइन है ये ब्रैकेट एमसीक्यू है दोस्तों ये जो है सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स ये क्या है इसके लिए 2 लाइनें 3 एक्चुअली इसके लिए 3 लाइन क्या है ये दोस्तों फ्री लिविंग मींस किसी के बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं है फ्री लिविंग ओके फ्री लिविंग कोई डिसीज कॉज नहीं करता है इसलिए नॉन पैथोजेनिक है फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक दोस्तों निमॅटोड्स म्हणजे एक क्लास असतो निमॅट हेल्मिंथस मध्ये निमॅटोड है कौन सिनोरैप्डाइटिस इलेगन्स तो सर यहाँ क्यों बता रहे हो आप हाँ ये थोड़ी एनसीईआरटी में दिया है लोआ ते एमबीबीएस ला गेल्याच्या नंतर तितक्या डिटेल मध्ये जाऊया सब है ये एमबीबीएस फाइनल ईयर में सॉरी माइनर में 3rd ईयर में नाउ प्लीज पे अटेंशन पेज नंबर अगर है आपके पास 12th का बुक तो पेज नंबर 119 ओपन करो
ये डायग्राम वाला पेज नंबर 119, 12th का बुक, 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 119. ओके, काढलं काय? इथं बघा, हे ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये, म्हणजे ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये लक्षात द्या, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये जरा तुम्ही लक्ष द्या. इथं नाव जर येत असेल तर बघा, माझ्या बोटाच्या खाली वाचता येते का? कुठे गेला कॅमेरा? इकडे का? येते का वाचायला? फोकस झालं का? फोकस झालं का नाही? थांबा. सिनोरॅबिडिटिस इलेगन्स फोकस व्हायला का? सिनोरॅबिडिटिस इलेगन्स ब्रॅकेट एमसीक्यू फ्री लिव्हिंग नॉन पॅथोजेनिक निमॅटोड्स आहे का? पुन्हा त्याच्या पुढे ड्रॉसोफिला आहे, फ्रूट फ्लाय, ते द्या सोडून. सिनोरॅबिडिटिस इलेगन्स फ्री लिव्हिंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड्स आए का? टॉपिक कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा टॉपिक है. तो वहां पे दिया है और वहां से एमसीक्यू आता है. और ये सिनोरैबिडिटिस इलेगन्स ये निमैटोड है. अगर मुझे मेरे बच्चों को 11th में पता है कि ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड, 12th का जो बर्डन है ना वो कम होता है. दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ एआईबी, याद रखो. सो सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैबिट की बात करें फिर तो ये हमारा सब बाकी शुरू हो जाएगा. दैट इज क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काय असणार आहे बोला. एसके हेल्मिंथस की बात करें, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या बात है यार गौरव, बहुत ही बढ़िया, सब लिख लिया, सबने लिख लिया. मैं जो पूछने वाला हूं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. क्या बात है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम अपीयर इन एसके हेल्मिंथस. पर शुरू कैसे करना है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा. Tissue level of organization is present in Coelenterate and Ctenophora. Organ level of organization is present in Platyhelminthes, and organ system level of organization is present in SK helminthus onward. याच्यानंतरचा मुद्दा कुठला आहे? बॉडी सिमेट्री, या फिर जस्ट सिमेट्री भी कह सकते हैं. बॉडी सिमेट्री क्या है? बॉडी सिमेट्री का निमोनिक्स दोस्तों, बॉडी सिमेट्री का निमोनिक्स है मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल. दूसरा, some student are ready for CET, means some sponges, and CET means Coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora are radially symmetrical. बाकी सब bilateral symmetry है. बाकी सब कैसे है दोस्तों? bilateral symmetry, bilateral symmetry, bilateral symmetry, bilateral symmetry. सांगू तुम्हाला एक सांगू, एनिमल किंगडमला वेळ लागेल शिकवायला, पण रिवाइज स्ट्रॅटेजी सांगू की एआयबीची वेळ लागतो टॉपिक कंप्लीट व्हायला. पण तुम्ही जर माझ्याकडनं टॉपिक शिकला ना, माझ्याकडनं किंवा माझ्यासारख्या टीचरकडनं, रिवाइज करायला 25 मिनिटं, फक्त 20 ते 25 मिनिटात टॉपिक जिकडं तिकडे, 25 मिनिटामध्ये टॉपिक जिकडं तिकडे. एक शिकण्याची पद्धत आहे. 25 मिनिटात बायलॅटरल सिमेट्री तेच आहे सगळं. नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलॅटरल सिमेट्री. जर्म लेयर, चला सांगा जर्म लेयर क्या है दोस्तों? क्या निमोनिक्स है जर्म लेयर का? जर्म लेयर का निमोनिक्स है पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक. बाकी के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक. तर हे पण ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यह है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ ऐसा है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 germ layer, there is presence of 3 germ layer, presence of 3 germ layer, that is presence of 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. आता जरा लक्ष द्या. that is पुन्हा अंत ट्रिप्लोब्लास्टिक. त्याच्यानंतर बॉडी सिमेट्री, सिलोम. सिलोम काय लक्षात ठेवा. आहा आले एसके हेल्मिंथस. एसके हेल्मिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट. इनमें सूडोसिलोमेट होता है, सूडोसिलोमेट है. इसका मतलब क्या है? सूडोसिलोमेट इसका मतलब है दैट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओके scattered pouches of mesoderm in body cavity. Pseudocoelom मतलब क्या दोस्तों? mesoderm are present in scattered form, scattered pouches of mesoderm होंगे, scattered pouches of mesoderm, scattered pouches of mesoderm, okay, in body cavity, in body cavity. ऐसी body cavity होगी, scattered pouches of mesoderm in body cavity. इसे कहते हैं pseudocoelomate. त्याला काय म्हणायचं? pseudocoelomate.
नंतर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेगमेंटेशन होगा नहीं। सेगमेंटेशन का क्या निमोनिक्स है दोस्तों? व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर सेगमेंटेशन? आप बोलो व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर सेगमेंटेशन? दैट इज AC annelida arthrodata are segmented। तो ये कैसे हो गए दोस्तों? नॉन सेगमेंटेड, या फिर कोई जो बंदा है दूसरा शब्द यूज करेगा अनसेगमेंटेड, दोनों में से कोई भी आने दो। नॉन सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। नोटोकॉर्ड है का? नो, इसलिए वो नॉन कॉर्डेट में आते हैं। नोटोकॉर्ड इज देयर? नो, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। ओके, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, नोटोकॉर्ड नहीं है, अब्सेंट कैपिटल मध्ये लिहितो अब्सेंट। नरकॉर्ड है, और नरकॉर्ड कैसा होगा? नरकॉर्ड दोस्तों याद रखो वही है। नरकॉर्ड कैसा है? सर तुम्ही रोज दरवेळेस का लिहिता होय? एकदा सांगा ना, यांच्यामध्ये नाही आणि बाकीचं शिकवा. नाही, याला प्रॅक्टिस म्हणतात मराठी इंग्लिश मध्ये, प्रॅक्टिस। ओके, एकदा शिकून चालणार नाही। नरकॉर्ड कसं असणार? दॅट इज DVS। DVS मतलब डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, हे झालं त्याचा DVS, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, हे त्याचा DVS झाला, लक्षात ठेवा। आता झालं, हे झालं नरकॉर्ड। आता ह्याच्यामध्ये पुढे जाऊया। इज दॅट क्लिअर? हे लक्षात ठेवा, सिनोर एब्डायटिस एलिगन्स, बाकी सगळे एंडोपैरासाइट असतात, तोच एकमेव फ्री लिविंग है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते दोस्तों, दैट इज डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो असते, डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों, देयर इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, लक्षात ठेवा। पुन्हा आणखी एक गोष्ट, दैट इज वेल डेव्हलप्ड मस्कुलर फॅरिंग्स असतं। वेल डेव्हलप्ड मस्कुलर फॅरिंग्स is the feature, well developed muscular pharynx is the feature of दोस्तों digestive system, is the feature of digestive system। फिर दोस्तों that is excretory system असते का है। now ये जो excretory system है, याद रखो excretory organ बोलूंगा, system नहीं, या फिर बोल सकते हैं excretory system, क्योंकि organ system level of organization है। तो excretory system में दोस्तों excretory tubes and pore असतात। काय आहे excretory system? A contain, excretory system contains दोस्तों, they contain excretory tubes। एक excretory tubes है that collect the nitrogenous waste product, excretory tubes with, और excretory pore होंगे, excretory pore, they help in release of that nitrogenous waste product to the outside। ते nitrogenous waste product outside ला टाकल्या जातात, बाहेर फेकल्या जातात by with the help of this excretory tube। Excretory tube collect the nitrogenous waste product from the body, and with the help of that via excretory pores these substances are released outside the body। तो ये पता होना चाहिए कि excretory tube और excretory pore कैसे काम करते हैं दोस्तों। that is that excretory tube नाम में ही काम है, excretory tube collect nitrogenous waste product like urea, O sub, nitrogenous waste product from the body part, waste product from body part, and okay, and via or through, and दोस्तों and through excretory pores, and through the excretory pores, they are released through the excretory pores, they are released to outside। याद रखो, बॉडी के बाहर फेंके जाते हैं,
तो ये एक्सक्रेटरी पोर और एक्सक्रेटरी ट्यूब और एक्सक्रेटरी पोर्स, दीज आर द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन एस्के हेलमिंथस, ये कभी मत भूलो। और जो मैंने ऊपर लिखा है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, फर्स्ट टाइम किस में आया? हमें भी है ये, पर ये फर्स्ट टाइम एस्के हेलमिंथस में आया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किस में है फर्स्ट टाइम? वो है दोस्तों एस्के हेलमिंथस। ओके, नॉर्को डॉर्सल लिलाय का, अरे ऐसा क्या काय बोलायला लागला? ओके, डॉर्सल तर चूक झाली मग, नॉर्को डबल लिहिला असेल रे. ओय कुठं लिहिला डॉर्सल? वेयर इज डॉर्सल? डबल लिखा है, डबल वेंट्रल सॉलिड, डबल है ये। फर्स्ट स्लाइड, ओके फर्स्ट स्लाइड में, ओहो फर्स्ट स्लाइड में, ओके थैंक यू सो मच। कैसा हो गया? डॉर्सल नहीं, क्या होना चाहिए? इट शुड बी डबल, काय पाहिजे? डबल, सॉरी डबल, थैंक यू, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड. कसं पाहिजे बेटा? डबल वेंट्रल एंड सॉलिड. थैंक यू सानिका, थैंक यू. कोणी सांगितलं हे करेक्शन? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सानिका शिंदे मैडम, थैंक यू. नाउ डायजेस्टिव्ह सिस्टम आणि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्लियर आहे, हे माहिती असणं गरजेचं आहे. नाउ बात करते हैं दोस्तों, अभी पॉइंट है सेक्सुअलिटी, म्हणजे मोनोसियस है का डायोसियस है? नाउ सेक्सुअलिटी में दोस्तों ये डायोसियस एनिमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैसे है? यूनिसेक्सुअल है. यूनिसेक्सुअल मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेटेड. डायोसियस means male and female sex organ are separated. Means unisexual or dioecious means male and female sex organ, male and female sex organ present on the separate individual sex organ, male and female sex organs present on separate individual or different individual, present on separate individual or different individual, त्याला म्हणायचं सेक्सुअलिटी. कशी आहे? डायोसियस आहे. हे महत्वाचं आहे, हे अतिशय महत्वाचं आहे. यूनिक फीचर सांगतो, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल अलग दिखेगा मॉर्फोलॉजिकली और फीमेल अलग दिखती है. हमारे वी हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. हम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या नहीं? बोलो. ओके, इज देयर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? हम में है या नहीं? हम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या नहीं? बोलो. यस, वी हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्योंकि हमारे फीमेल मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखेगी और मेल अलग दिखते हैं. तो याद रखो, हम में भी सेक्सुअल ये है, डायमॉर्फिज्म है. ठीक है, बात दोस्तों सेक्सुअलिटी की बात हुई तो बात करेंगे. दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट. डायमॉर्फिज्म. सर ये इतना ही कैपिटल क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब ये शब्द इंपॉर्टेंट लगता है हमें, है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस that male and female, okay, appear different morphologically. Morphologically male and female are different. इसका मतलब डायमॉर्फ, दो मॉर्फो है. So morphologically, morpho means, now what is morphology? Study of external features. मेरे दो हाथ है, दो पैर है, दो नाक है, सॉरी एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है, तो ये मेरी मॉर्फोलॉजी हो गई. ओके, एक जबान है. So morphologically means external appearance. Morphologically, morphology means external appearance. Morphologically, male and females appear different. Male and female appear different. Appear different. अगर वो अलग अलग दिखते हैं, they look different, they appear different, तो उसे कहते हैं दोस्तों
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये हम में भी है, दिस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम में भी होता है, याद रखो ना। व्हाट इज द फीचर ऑफ मेल कैसा और फीमेल कैसा, ये हमें पता होना चाहिए। मेल वर्सेस फीमेल ये फीचर पूछे जाते हैं, कहाँ पे है, दिए है वहां पे, याद रखो। फीमेल दोस्तों, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, दे आर लॉन्गर देन द मेल, याद रखो। फीमेल और लॉन्गर देन द मेल, और मेल जो होते हैं दोस्तों दे आर शॉर्टर देन फीमेल। डायग्राम बघा, दे आर शॉर्टर देन द फीमेल, फीमेल लंबे होते हैं इनमें। नाउ मेल के पास लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है मेल का, पोस्टीरियर एंड देखो, पोस्टीरियर एंड इज मेल का पोस्टीरियर एंड दोस्तों कर्व्ड है, दिख रहा है या नहीं, यस और नो। पोस्टीरियर एंड क्या है दोस्तों, कर्व्ड है। फीमेल का पोस्टीरियर एंड फीमेल का स्ट्रेट है, दिख रहा है। पोस्टीरियर एंड फीमेल का कैसा दोस्तों, स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। और नंबर 1 एट पोस्टीरियर एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेनाइल सीटे। पोस्टीरियर एंड म्हणजे खालचा एंड, डायग्राम आहे का तुमच्या समोर, पोस्टीरियर म्हणजे पाठीमागचा एंड, अँटेरियर ही माझे अँटेरियर साइड आहे, माझे पाय म्हणजे पोस्टीरियर आहे। समजा मी जर असा आहे तर हे अँटेरियर साइड आहे, पाय म्हणजे पोस्टीरियर। हे अॅनिमल जर असा आहे तर हे त्याचं पोस्टीरियर एंड झालं, आणि हे त्याचं अँटेरियर एंड झालं, हे पाठीमागचं, सॉरी हे अँटेरियर तोंड, माउथच्या साइडचं अँटेरियर, एनसच्या साइडचं एंड असतं पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड, दिसायले का पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड। और दोस्तों देयर इज अ पेयर ऑफ पिनाइल सेटे, म्हणजे ऑर्गन है पिनाइल सेटे, ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स, पिनाइल सेटे, पेयर ऑफ पिनाइल सेटे एट पोस्टीरियर एंड, दोन गोष्टी, पेयर ऑफ पिनाइल सेटे एट पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पे पिनाइल सेटे भी होते हैं, और देयर इज नो सच पिनाइल सेटे, ओके, दे हेल्प इन कोपुलेशन, अब्सेंट होते हैं फीमेल में। पिनाइल सेटे इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या है पिनाइल सेटे, पेनिस जैसा है, पिनाइल सेटे इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रुकता हूं इतना, आगे वाला कल देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिनाइल सेटे, इज प्रेजेंट इन मेल। दिसतंय का, एक छोटस डायग्राम, एक छोटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, ओके। डेव्हलपमेंट राहिलं, डेव्हलपमेंट बोथ डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट है। डेव्हलपमेंट ह्याच्या नंतर घेतो मी, रिप्रोडक्शन भी बाकी है ना, रिप्रोडक्शन भी बाकी है, लक्षात ठेवा। डेव्हलपमेंट आणि रिप्रोडक्शन बाकी आहे। डेव्हलपमेंट तुम्ही लिहा, पॉइंट मी इथं लिहितो, रिप्रोडक्शन एंड डेव्हलपमेंट हे दोन मुद्दे राहिलेत, उद्याच्याला बोलूया। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें, ओके, याद रखो हमेशा इनमें। और डेवलपमेंट दो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है। क्लॉयका प्रेझेंट असतं, क्लॉयका इज प्रेझेंट हियर, याद रखो। आणखी एक गोष्ट, मेल मध्ये क्लॉयका नाम का एक स्ट्रक्चर होतं, क्लॉयका इज प्रेझेंट। खाली या तुम्ही, इथं वर लिहितोय क्लॉयका काय असतो मी इथे उद्याच्याला सांगतो। एक ओपनिंग कॉमन चेंबर असतं जिथं एनस, युरिनरी ट्रॅक्ट ओपन होतात। क्लॉयका अब्सेंट आहे, क्लॉयका इज अब्सेंट इन फीमेल, मेलचं फीचर आहे क्लॉयका, बस एवढं लक्षात ठेवा। सगळं विसरलात तरी ह्या दोन गोष्टी। लॉन्गर लेंथ किसकी ज्यादा है, फीमेल बड़ी है मेल से, और फीमेल पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड, ये दो चीजें याद रखो। नाउ क्लियर है, बस रुकते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बोथ डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आहे। पेनाल्सिटी ऍब्सेंट इन फीमेल मध्ये, तर फीमेल मध्ये कोणते असतात, फीमेल मध्ये नाहीये, फीमेल डजंट हॅव अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल ओनली हॅव कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मीन्स लाइक in human being, copulatory organ is penis, in human male organ of copulation is sexual intercourse, उसका दूसरा नाम है coitus, okay, उसी को कहा जाता है copulation। so organ of copulation in male, human male is penis, in female, human female is vagina। तो ये पूछा जाता है कि organ of copulation क्या होगा इस मेल राउंड वर्म में, तो दोस्तों है पिनाइल सेटे, याद रखो पिनाइल सेटे। दिख रहे हैं छोटे छोटे, ओके। नहीं आता काय नाही,
आता ते व्हॉट्सअप अपडेट झालं मुलांना, दिसतंय का? इज दैट क्लियर? ओके, सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से बात कर दोस्तों। प्लैटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म named so because their body is dorsoventral flattened, MCQ, habitat aquatic terrestrial और हैबिट फ्री लिविंग एंड एंडोपैरासाइट मोस्टली, स्पेशल एडाप्टेशन इन पैरासाइटम। ये 12 का पॉइंट है, टॉपिक है दोस्तों 12th, याद रखो। कहां से लिया है ये 12th एनसीईआरटी से पॉइंट लिए हैं मैंने, कुछ बाकी के, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हुक्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, sucker for absorption of nutrient from the host, loss of unnecessary sense organ, loss of digestive system but high reproduction capacity. पुढं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे प्लॅटिहेल्मिंथ मध्ये, बायलॅटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत, असिलोमेट आहेत, नॉन सेगमेंटेड, अब्सेंट आहे, नोटोकॉर्ड अब्सेंट आहे, नर कॉर्ड इज अ डबल व्हेंट्रल अँड सॉलिड आहे, डीव्हीएस म्हणतात त्याला, सेक्सुअलिटी बायसेक्सुअल आहेत, कोण प्लॅटिहेल्मिंथस मोनोसियस आहेत, हर्मॅफ्रोडाइट आहेत, asexual reproduction, regeneration is very common in planaria, sexual reproduction occur by fusion of gamete, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यूनिक फीचर फ्लेम सेल और उसका नाम है प्रोटोनिप्रिडिया, वो सिलिएटेड सेल है and they help in excretion and osmorylation. F for flatworm, F for flame cell. फिर हमने बात की Aschelminthus, Nemathelminthus, roundworm. Why? Because on cross transverse cross section their body appears circular. Habitat aquatic और terrestrial है, और हैबिट फ्री लिविंग है, और एक में फ्री लिविंग Aschelminthus जो हमें पता है वो है Sinorhabditis elegans. बोलो क्या नाम है, मेरे साथ बोलो, Sinorhabditis elegans. Sinorhabditis elegans. सर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, अरे तेरे को जैकलिन फर्नांडिस का नाम लेने में दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे सिनोरैप्टाइटिस इलेगेंस का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है, ये तेरे को एमबीबीएस तक लेके जाने वाला है, सिनोरैप्टाइटिस इलेगेंस। फिर उसके बाद दो चीजें, तीन बात उसके बारे में, फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड से, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड से, LOO ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री बायोलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं Aschelminthus. Aschelminthus is equal to pseudofilament, means there is a scattered pouches of mesoderm in body cavity. They are non-segmented animal. Notochord absent है, nerve cord वही डबल वेंट्रल और सॉलिड होता है दोस्तों, याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड, मस्कुलर फाइनेंस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंटेन एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड पोर्स। तो ट्यूब का काम करता है, ट्यूब का काम होता है टू कलेक्ट द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, और वाया पोर दे आर रिलीज टू आउटसाइड। यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो आप देखो जरा डायग्राम में, वहां पे देखो जरा डायग्राम में दी है एस्केरियाज एंड राउंडवर्म, छोटा सा मेल और बड़ी सी फीमेल दी है, मतलब वो अलग अलग दिखते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल अपीयर डिफरेंट, तो मेल में दोस्तों शॉर्टर देन फीमेल है, फीमेल लॉन्गर होती है, मेल में पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है, देखो डायग्राम को, फीमेल में पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है, मेल में वो छोटा सा दिख रहा है आपको, दो छोटे छोटे हैं, पिनाइल सेट लिखो वहां पे स्पेलिंग देख के, पोस्टीरियर एंड पे पियर होता है एक पिनाइल सेट का, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल में वो नहीं है। मेल में और एक चेंबर होता है, उसका नाम है क्लोएका, जहां पे एनस और यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन होते हैं, मेल फीमेल में वो क्लोएका अब्सेंट है। बस इतना ही, कल रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, चलो बाय, बरोबर लगेच बंद करतो, बरं बंद, 2:30 उद्यापासून बंद, ठीक है, थँक्यू सजेशन साठी, ठीक है, आज की डीपी किसके आने वाली है, थैंक यू, ओके, कौन तो शिवानी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। आज की डीपीपी इसके ऊपर ले लेंगे, एक के ऊपर, क्या बॉडी एक ही झाली काल, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आज काय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आज की डीपीपी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक आहे, चलो। सर मला स्क्रीनवरती सगळं काळं काळं दिसत होतं, पण आवाज तुटत, आता लगेच स्क्रीनशॉट पाठवतो, लगेच सुरू झालं, ते सुरू झालं बेटा, बाकीच्या पण पाठवतो तुम्हाला ज्या राहिल्यात, पण ह्या लगेच पाठवतो आत्ताच्या। एके अच्छा, पुन्हा कुठल्या कुठल्या बाकीत सांगा, पुन्हा कुठल्या बाकीत, कालच्या पण बाकीत ना तुमच्या, कालच्या पण, परवाच्या पण बाकीत का?
पण ऍट अ टाइम एकच जातात मला वाटतंय. छान, ऍट अ टाइम एकच जातात. छान, आजच्या पाठवतो अगोदर. ठीक आहे. त्या एके दिवशी ना TND झालं, त्यामुळे त्या बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशनच्या त्या नोट्स नाही आहेत. ठीक आहे. पंचवीस तारखेला कालचं एके झालं का? कालचा एके, हा एके. 24 तारखेच्या आहेत का एकेच्या? बघा एकदा. 24 तारखेच्या एकेच्या टेस्ट आहेत. 24 तारखेच्या एके आहेत. ठीक आहे. सव्वीसच्या पाठवल्यात. काल तर आपण 26ला बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन हे घेतलं. ठीक आहे. थँक्यू. चला, 24ला संडे का? 24 होतं रे, 24ला झालंय. लेक्चर लगेच अपलोड करतो बेटा, झालं की. लगेच.